Students, in this lecture, we will learn how to find the probability by using the combinations. So we will start with an example. In this example, we can see that we have 3 red balls and 2 blue balls. Okay, and how many total balls? There are total 3 plus 2 is 5 balls. 2 balls are selected at random. हम कोई से 2 balls जो हैं वो इसमें से randomly select करेंगे. Okay, so we need to find the probability that we have 3 parts of this question. First one is one ball is red, one ball is blue. In B part, we need to find the probability both balls are red. And in C part, we need to find the probability both balls are blue. So in this lecture, we will learn how to find the probability by using the combinations. The reason is sometimes we have the question is in such a format that the number of elements in sample space is too much. It is not easy to find all the elements in sample space. So by using the combinations, we can easily solve the question. And you will learn here how to find the probabilities by using combination. So we have 3 red and 2 blue balls. अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको डिनोट करते हैं. Let the red balls are R1, R2 and R3. We denote the red balls with R1, R2, R3, and blue balls, there are 2 blue balls, so B1 and B2 we will say. So here we will make the sample space. अब हमारे पास जो sample space में जो combination आ सकते हैं, we need two balls. तो ये जो रेड बॉल्स और ब्लू बॉल्स इनके हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, पेयर्स बना लेते हैं टू बॉल्स के. सो यू कैन सी R1 R2 R1 R3 क्लियर. और इसी तरह से द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड बॉल R1 विद ब्लू बॉल एंड R1 विद B2. Similarly R2 with R3, there is also an option R2 R3 भी हो सकता है. R2 का B1 और B2 के साथ भी हमें कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. Similarly R3 का B1 और B2 के साथ हम पेयर बनाएंगे एंड B1 B2. सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ टू बॉल्स. ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी हमने इसको इसका एक सैंपल स्पेस यहाँ पे बना लिया. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस. देयर आर 10 एलिमेंट्स. So this is a very short question, this is a very little question, we can easily find these things, but you will see in the next examples the sample space is many elements. It is not possible to find a sample space without combination, it is difficult. So अभी हम यहाँ पे सीखेंगे how to find the number of element sample space by using combination. Now you can see here how to calculate number of element sample space using the concept of combination. So combination को हम किससे denote करते हैं? You can see here NCR. What is N? N is total number of objects. और R क्या होता है हमारे पास? R taken at a time any number of elements without any specific order. ठीक है, मैंने आपको combination की definition बताई हुई है कि इसमें हम element लेते हैं without any specific order. So अब हम देखते हैं किस तरह से हम नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस के 10 फाइंड करते हैं विद यूजिंग बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन. So NCR gives us all different combination of n objects where r object at taken at a time. अब यहाँ पे what is the formula of the combination? This is the formula of combination. NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. And how can we find n factorial? N factorial, this is equal to this one, as you can see on the right hand side. N factorial is equal to n, then फिर मल्टीपल फॉर्म में n minus 1 कर देंगे, फिर n minus 2 and so on up to 3 to 1 तक हम जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारे एग्जाम्पल इसमें हाउ मेनी total balls, how many red balls? There are 3 red balls. How many blue balls? There are 2 balls. So n number of elements is 5. So 5 का factorial हमारे पास क्या आएगा? 5 4 3 2 1. इसको solve करेंगे तो 120 आ जाएगा. Okay. So in this example we have
5 balls and we need to choose how many balls. हमने कितने बॉल चूज करने, क्वेश्चन में क्या था, we need to choose 2 balls randomly. Okay, so 5 balls are total and 2 balls we need to choose randomly. combination से अब हम देखते हैं क्या इसका sample space हम find कर सकते हैं. सेम आंसर आता है. so put the values, n is equal to 5, r is equal to 2. सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हो जाएगा. ओके, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सैंपल स्पेस में आते हैं तो सेम उसी तरह से आ रहे हैं जैसे कि ऊपर अभी हमने फाइंड आउट किया था विदाउट कॉम्बिनेशन. अब फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज ए पार्ट. इन ए पार्ट वी नीड टू फाइंड वन बॉल इज रेड, वन बॉल इज ब्लू. अभी हमने इसका फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी. ठीक है, सो हाउ कैन वी फाइंड. अब यहाँ पे साथ साथ आपको विद द प्रीवियस मेथड से भी बताएंगे और विद कॉम्बिनेशन भी हम देखेंगे. सो वन बॉल इज रेड, वन बॉल इज ब्लू. जो हमारे पास जो इवन सेट ऑफ इवेंट्स जो हमारे पास आएगा, यू कैन सी वन बॉल इज रेड, वन बॉल इज ब्लू. जितने भी जो सैंपल स्पेस में से जो एलिमेंट्स थे जिसमें पेयरिंग वन बॉल इज रेड वन बॉल इज ब्लू थे वो तमाम के तमाम हमने यहाँ पे ले लिए. ओके, एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट टी, देयर आर 6 एलिमेंट. प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 6 ओवर 10. 10 इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस. सॉल्व करेंगे तो 3/5 आएगा. Now we will see how to find the probability by using combination. अभी हम combination से कैसे find करते हैं. So by using combination number of elements in set E event में जो हम find करेंगे by using combination. अभी यहाँ पे 6 आए हैं. अभी हम check करते हैं क्या combination से भी 6 आता है. Okay, how many total red ball? There are total 3 red ball as you can see here. And in the A part we need to choose one red ball. So you can see R is equal to 1 into how many total blue balls. There are 2 balls, n is equal to 2 in the case of blue. And in A part one is red ball, one is blue ball. So यहाँ पे भी r हमारे पास 1 होगा. When we will solve these two combinations, तो इसका भी जो आंसर हमारे पास आता है वो 6 आता है. ठीक है, you can also solve this combination by using calculator. आपके पास वहाँ पे वो ऑप्शन होता है, उसमें जस्ट आप वैल्यू पुट करें, मल्टीपल फॉर्म में लिखें तो आपके पास कॉम्बिनेशन जो है वो सॉल्व हो जाता है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन इज आल्सो 6. और ऊपर भी अभी हमने सेट लेके भी फाइंड आउट किया था वो भी 6 था. सो इन दिस वे वी कैन इजीली फाइंड द प्रोबेबिलिटीज बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन. इन बी पार्ट में हमारा क्या क्वेश्चन था. बी पार्ट इज बोथ द बॉल्स आर रेड. वो जो हमारा सेट है इन दिस सेट सैंपल स्पेस में, पहले हम उससे देख लेते हैं. रेड बॉल, बोथ द बॉल्स आर रेड. आर ये हमारे पास आ जाएगा, R1 R2 हमारे पास आ जाएगा. both the balls are red, both the balls are red. okay, where is both the balls are red, this one. तो 3 एलिमेंट्स यहाँ पे आते हैं, both the balls are red. तो सेट से अगर हम सॉल्व करें विदाउट कॉम्बिनेशन, पहले वो आप देख लें. दिस वन बी पार्ट, सो both the balls are red 3. तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगा 3/10. कॉम्बिनेशन से देखते हैं हाउ कैन वी फाइंड द कॉम्बिनेशन. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब देखें बोथ द बॉल्स आर रेड, देयर इज नो ब्लू बॉल. सो हाउ मेनी टोटल रेड बॉल, देयर आर 3 बॉल and we need to find the probability both the balls are red now. So r is equal to 2. इसको भी जब सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन को, इसका आंसर आएगा 3. here is also 3 by using by taking the elements in a set. और कॉम्बिनेशन से भी हमने देखा वो 3 आता है. so 3/10 is the probability by using combination or by using by the method we have already learnt in the previous lectures. and in C part, इसी का जो C part था both the balls are blue. तो जो हमारे पास जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है उसमें both the balls are blue जो है, there is only one element, both the balls are blue, जो अभी आपको सैंपल स्पेस हमने फाइंड आउट किया था. ठीक है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट इज इक्वल टू ओनली 1. अब हम देखते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड विद कॉम्बिनेशन. तो कॉम्बिनेशन से जब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट फाइंड करना चाहा व्हेन बोथ द बॉल्स आर ब्लू, so we know that how many total blue balls, there are 2 balls and we need to choose 2 blue balls. तो r भी यहाँ पे 2 होगा. जब इस कॉम्बिनेशन को भी सॉल्व किया तो हमारे पास 1 आ जाएगा. यहाँ से भी 1 आ रहा है और कॉम्बिनेशन से भी हमारे पास 1 आता है. so the probability of an event is equal to 1/10.
In this example, we learned how to find the probability by using combination. In the next examples, you will see that we will just use the combinations to find the probabilities. Okay, उसमें हम sets नहीं लेंगे. It is not easy to find the number of elements in sample space or number of elements in an event. It is somehow it is difficult when we have many elements. तो अभी हम learn करते हैं more about how to find the probability by using combination. For example, we have another question. Please see it very carefully. In this question, you can see that let we have a bag in which we have 6 red. Please note it: 6 red, 4 yellow, 8 green, and 7 blue balls. Okay, so we can easily see that how many total balls in the bag. 6 plus 4 is 10, plus 8 18, plus 7 25. So there are total 25 balls in a bag. Okay, so number of elements is now n is equal to 25. 2 balls are chosen at random. Okay, 2 balls are chosen at random. हम उसमें से जो 25 balls हैं उसमें से हम 2 balls को choose करेंगे और वो भी randomly. हमें नहीं पता वो कौन से balls होंगे. In the next we will see कि हमें किन balls को choose करना है. For example, in part A, 1 ball is red and 1 ball is green. एक हमने red लेना है ball और एक हमने green ball find करना है. ठीक है, उसमें से randomly हमने choose करना है. So पहले सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. वो हम देखते हैं वो कितने हमारे पास होंगे. जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस अभी हम कॉम्बिनेशन से फाइंड आउट करते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज यू कैन सी हियर. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हियर, हाउ मेनी टोटल बॉल्स, देयर आर 25. ओके, एंड 2 बॉल्स आर चोजन रैंडमली. r is equal to 2. जब हमने इसको सॉल्व किया, देयर आर 300 एलिमेंट्स. सो यू कैन सी हियर it is very difficult to find the number of elements in sample space if it is 300, and if it is more than 300 it is more difficult. Clear? तो फर्स्ट पार्ट में ये तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस 300. अब हम देखते हैं पार्ट ए. इन फर्स्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड व्हेन one ball is red, as you can see here. one ball is red and one ball is green. एक हमारे पास रेड बॉल होगा और एक हमारे पास क्या होगा, ग्रीन बॉल होगा. रेड एंड ग्रीन. ठीक है, सो हम यहां से ये भी चेक करते हैं हाउ मेनी रेड बॉल. देयर आर 6 रेड बॉल. प्लीज नोट इट, देयर आर 6 रेड बॉल. एंड हाउ मेनी ग्रीन बॉल, देयर आर 8 ग्रीन बॉल्स. तो 6 में से हमें एक बॉल लेना है. वी नीड टू चूज 1 बॉल आउट ऑफ 6 एंड वी आल्सो नीड टू चूज 1 बॉल आउट ऑफ 8. तो अभी हम इसका नंबर ऑफ इवेंट्स फाइंड करते हैं. एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, दिस इज वेरी इजी नाउ बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन. तो किस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे. आउट ऑफ 6 रेड बॉल, n is equal to 6, we need to choose 1, multiply out of 8 green ball, we need to choose 1. जब हमने इसको सॉल्व किया तो 48 आ जाएगा. Now put the values in the formula of probability. वो क्या होता है, probability of an event is equal to number of elements in event, that is 48, divided by total number of elements in sample space, that is 300. So we can easily find the probability by using combination. I hope it is clear to all of you. Similarly, when we see the B part को हम देखते हैं, one ball is yellow and one ball is blue. Same to same. So how many yellow ball, you can see 4. n is equal to 4 होगा और येलो बॉल इज 1. उस कॉम्बिनेशन में n 4 होगा और 1 1 आ जाएगा हमारे पास. इनटू 1 बॉल इज ब्लू, 7 हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं, उसमें से हम एक ले लेंगे. सो यू कैन सी द बी पार्ट एज ऑन योर स्क्रीन. बी पार्ट में हमारे पास इसी तरह से हमने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट फाइंड आउट किए हैं. आउट ऑफ 4 1 लेंगे, आउट ऑफ 7 1 लेंगे. इसको भी सॉल्व किया, वी कैन इजीली फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन. ओके, so in the C part, what is C part? Both balls are yellow. हमारे पास जो दोनों balls हैं वो yellow हैं. And how many yellow balls? We know 4. अब दोनों को दोनों yellow balls है. There is no other option. तो हम क्या करेंगे, इसी की भी इसी तरह से हम number of elements find करेंगे event में. So you can see how many yellow ball,
टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 4 और 2 हम इसमें से चूज करेंगे। जब हम इसका कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे 6 आएगा। 6/300, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, both the balls are yellow. And what is D part? In D part both balls are blue, दोनों blue balls हैं। So how many total blue balls? 7। तो 7 और 2 का हमारे पास इसका combination आएगा। Total number of elements is 7 as you can see here, 7 और इसमें से 2 लेंगे 21 आएगा इसका combination, 21/300. This is very easy to find the probability by using combination. And similarly we can see the E part. What is E part? Exactly one ball is red. अब इसमें एक ball, this is sure that out of 2 balls one ball is red. एक ball जो है वो हमारा red है ही है, ठीक है। So one ball is red. How many total red balls? 6 red ball. Clear? देखते हैं हम इसकी किस तरह से find करते हैं number of element. So we have 6 red ball and we show that one ball is red. So इसका जो n वो 6 होगा यहाँ पे फर्स्ट कॉम्बिनेशन में और R1 आ जाएगा इनटू। अब देखेंगे 6 बॉल्स में से हमने एक तो चूज कर लिया। हाउ मेनी बॉल्स आर लेफ्ट? अब टोटल बॉल्स जो थे वो हमारे पास 25 है। तो 25 में से आउट ऑफ 6 देयर इज 1 एंड हाउ मेनी लेफ्ट? 19 बॉल, क्योंकि 25 टोटल है, 6 में से एक हमने चूज कर लिया। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में n19 लेंगे। आउट ऑफ 19 the other ball, the second ball may be a blue ball, maybe green ball, maybe yellow ball. वो हमने दो ही चूज करने हैं तो सेकंड हम 1 उसमें से लेंगे। जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो 114 आएंगे। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, दिस इज वेरी इजी। हमारे पास इसको भी इसी तरह से फार्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो इन एफ पार्ट, अभी हम इसका एफ पार्ट भी देखते हैं। एग्जैक्टली वन बॉल इज ग्रीन, सो सेम टू सेम, एग्जैक्टली वन बॉल इज ग्रीन। हाउ मेनी टोटल ग्रीन बॉल? देयर आर टोटल 8। आउट ऑफ 8 वन बॉल इज ग्रीन, वो हम ले लेते हैं एज यू कैन सी हियर। आउट ऑफ 8 वन बॉल इज ग्रीन और टोटल 25 थे तो 8 उसमें से 25 में से माइनस करें, नेक्स्ट वी हैव 17। तो 17 में से हम एक बॉल लेके इसका जो है वो हम कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। आप इसको प्रोबेबिलिटी के फार्मूले वैल्यूज को पुट करें, सो वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन। आई होप आप सबको ये क्लियर हो चुका होगा हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग combinations. So next we have another example that is very similar to this example, same to same. In this example you can see, please read out by yourself first of all हमें इसमें क्या find out करना है, what is given and what we need to find. So in this question the question is same but there are different options to find the probability. Again we have a bag in which 6 red ball, 4 yellow, 8 green, 7 blue, same to same. But in this case we need to choose 4 balls at randomly. Okay, in the last question we have chosen 2 balls randomly, but in this case 4 balls randomly. So A part is same, but in 8 part we need to find the probability when 2 balls are red and 2 balls are blue, same to same. ठीक है, मेथड वही हम अप्लाई करेंगे। You will see it, मैंने सॉल्व किया हुआ है। I have solved this question, you can see it. 3 are red, 1 is green. Exactly 2 balls are red blue. Okay, और यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करूंगा D part, at least 2 are green. ठीक है, इसको मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ because this is different from the previous one. ऐसा हमने पहले सॉल्व नहीं था किया। ए पार्ट सेम है जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, बी भी सेम है, सी भी उसी तरह से है, और डी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ हाउ कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन वी हैव अ क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ बी पार्ट एट लीस्ट 2 बॉल्स आर ग्रीन। एट लीस्ट इट्स मीन हमने टोटल 4 बॉल्स लेने हैं
So at least we need to take 2 balls, but we can also take 3 balls, we can also take 4 balls. Clear? So D part you can see here. तो हमारे पास at least 2 balls हैं. We can also take 2 green, 3 green, 4 green. ठीक है. अब हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं. We know that there are total 8 green balls, but when we see 2 green ball, out of 8 we will take 2 ball. टोटल 25 बॉल्स हैं. 8 में माइनस हो जाएंगे, 17 में से फिर हम बाकी 2 बॉल्स लें. प्लस व्हेन वी टेक 3 ग्रीन बॉल, 3 लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बचेगा 1 का जस्ट, वो फिर हम 1 बॉल लेंगे बिकॉज टोटल 4 बॉल्स हमने चूज करने हैं. एंड इफ ऑल द बॉल्स आर ग्रीन, तो हमारे पास कोई भी जो जो एलिमेंट है, जो भी बॉल हमने चूज करना आउट ऑफ 17, वो 0 होगा. सो व्हेन वी सॉल्व दिस वन, तो हमने देखा कि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं वो 4830 हमारे पास आ गए. क्लियर? And what is the probability in this case, number of elements in sample space, वो भी हम देख लेते हैं. वो कितने हैं हमारे पास number of elements, that is 12,650. It is very big number of elements in sample space. You can see here it is not easy to find the number of elements in sample space. और हमने यहाँ कैसे फाइंड आउट किया है? टोटल 25 बॉल थे. आउट ऑफ 25 वी नीड टू टेक 4 बॉल्स. तो जब हमने इसके कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया तो 12,650 हमारे पास आ गया. क्लियर? So in this part we learned how to find the probability at least 2 green ball. And when we say about part E, at most 2 are yellow. At most it's mean कि हम E part में जब हम at most की बात करते हैं, we will take at most 2 ball, but we can take also 1 ball, we can also take no balls of yellow. और ठीक है, तो जब हम at most की बात करते हैं, ये मैक्सिमम हम 2 ले सकते हैं, लेकिन हम इससे कम भी ले सकते हैं E पार्ट के लिए. तो जब हम E पार्ट को सॉल्व करेंगे, एज यू कैन सी हेयर इन E पार्ट, एट मोस्ट 2 येलो हम ले सकते हैं. ठीक है, और उससे हम कम भी ले सकते हैं, 1 येलो और 0 येलो भी हम जब लेंगे. तो आउट ऑफ 25 में से 4 येलो में से 2 अगर हम लेंगे तो 21 में से बाकी 2 बॉल्स हम लेंगे. ओके, एंड आउट ऑफ 4 में से अगर हम 1 येलो बॉल लेते हैं तो आउट ऑफ 21 वी नीड टू टेक 3 अदर बॉल्स. आउट ऑफ 4 येलो बॉल्स में इफ देयर इज 0 येलो, देन इट्स मीन दैट हमारे पास जो 21 में से जो बॉल्स हम लेंगे वो 4 लेंगे. क्लियर? सो here is a question mark, you need to solve by yourself. इसको आप फाइंड आउट करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा. देयर इज अनदर लास्ट पार्ट, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. इन एफ पार्ट, व्हाट इज एफ? एफ इज either all 4 green or all 4 are red. You know, जब हम और की बात करते हैं, either की बात करते हैं, either A और B, then we need to use the law of addition of probability. अब हम उसको यूज करेंगे, the law of addition of probability. अब आप माइंड में रखिए, हमने फाइंड क्या करना है? either all 4 are green or all 4 are red. Clear? Okay, we will see how to solve this one. So F part, you can see all 4 are green, all 4 are red. ठीक है, so this is here. अब जब हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, A इंटरसेक्शन B, we know that green ball इंटरसेक्शन red ball, तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट हमारे पास आ जाएगा. क्लियर? So we will use here the formula of addition of probability. Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus यहाँ पे probability of A intersection B भी था, but we know that the probability of A intersection यहाँ पे B जो आ रहा है, intersection B empty set है हमारे पास. So यहाँ पे probability of empty set क्या होती है? 0. ठीक है, तो ये हमारे पास 0 टर्म है यहाँ पे. तो probability of A हमने फाइंड आउट कर लिया. All of 4 are green,
टोटल रेड जो हमारे पास ग्रीन बॉल थे वो 8 थे, उसमें से 4 लेके उसको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस से डिवाइड किया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, ऑल 4 आर रेड, सो 6 टोटल रेड बॉल, उसमें से हम 4 लेके उसको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व अप कर लेंगे, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सबको ये क्लियर हो चुका होगा हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशंस।